మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాము. పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ అధ్యక్షులుగా ఉన్న శ్రీ ఆంజనేయ రెడ్డి గారు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ టీవీఎన్ రావు, అలాగే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ గా ఉన్న పెద్దలు శ్రీ హనుమంతరావు గారు, శ్రీ వాయి, అలాగే ఈ సాంస్కృతిక మహోత్సవానికి సౌజన్యాన్ని అందించినటువంటి వారు పలు సంస్థల వారు ఉన్నారు. అందులో బిఎస్ఎన్ఎల్ తరఫున ప్రిన్సిపల్ జనరల్ మేనేజర్ శ్రీ పిఎస్ఆర్ కృష్ణ గారిని వేదికకి విచ్చేస్తారు. జోనల్ డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్ హైదరాబాద్ బ్రాంచ్ శ్రీ ఆర్సి అరోరా. We request Sri Arora Sahab to kindly come on to the dais, sir. వేదికకు విచ్చేసినటువంటి అతిథుల్ని సంప్రదాయబద్ధంగా పుష్పగుచ్ఛాలతో స్వాగతిస్తూ ఉన్నారు. శ్రీ సుశీల్ కుమార్ షిండే గారు to kindly lighten the lamp as a mark of inauguration, sir. మన రాష్ట్ర ప్రథమ పౌరులు హిజ్ ఎక్సలెన్సీ సుశీల్ కుమార్ షిండే గారు ఈ ప్రాంగణానికి రావడం ఇది తొలిసారి. వారి అమృత హస్తాలతో దీపారాధన జరుగుతోంది. గోల్కొండ సాంస్కృతిక మహోత్సవం ప్రారంభ సూచికగా దీపం వెలుగుతోంది. దీపం జ్యోతికి పరబ్రహ్మ, దీపరూపంలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మని అభివృద్ధి సంస్థకు అధ్యక్షులుగా ఉన్న పెద్దలు గౌరవనీయులు శ్రీ ఆంజనేయ రెడ్డి గారి స్వాగత వచనాలు. We are honored that our governor has taken time off to come and inaugurate this festival. We are also grateful to our sponsors, Gas of the Impossible. We welcome all of you to this function. Thank you. రాష్ట్ర పర్యాటక చక్కెర శాఖ మంత్రులు డాక్టర్ గీతారెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఈనాటి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన అలాగే బిఎస్ఎన్ఎల్ తరఫున పిఎస్ఆర్ కృష్ణ గారికి విచ్చేశారు. వారిని సెలవుతో సన్మానిస్తారు. డాక్టర్ గీతారెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. Perform a beautiful dance called Mahalakshmi. And then we have Anupam Kher coming up with a beautiful play again. Mostly they say it's autobiographical. And of course, the music lovers, I'm sure, will be thrilled by Trilok Gurtu from Germany on jazz percussion, and Rup Kumar Rathod. So these are the eminent people that are coming in. And we're also showcasing our own artists, our own folk artists also from the districts, from the rural areas. So this is a mixture, giving an opportunity for the known and not so known. And where better can we have such a festival other than at the Golconda in the Taranamli Baradari premises. 18 districts already. That is the interest he shows in our state, in our people. And I'm very happy and proud that in his busy schedule, he did take time to be with us today. I also thank my esteemed colleagues. This is Rajalakshmi and Nayani Narasimha Reddy garu. We are all very busy today with the visit of the Vice President and Mr. Ghulam Nabi Azad and Mr. Pranab Mukherjee, and yet both of them have found time to be here with me and with all of us. I in fact take this opportunity to be very grateful, express my gratitude to our sponsors, because the government can't spend these huge monies on the kind of artists that we're inviting so that our art lovers and can get an opportunity to see them. So the sponsors are a mainstay for us. I think they have done extremely well in coming forward to sponsor us. And of course, I can't end without thanking Mr. Anjaney Reddy, who is the man behind this wonderful complex that has come up, and his team of officials. We all work with a team spirit, and with all your help and cooperation, Andhra Pradesh tourism can leapfrog into becoming a great state to showcase ourselves in the country and in the world. Thank you very much. Jai Hind. The spirit Golconda by creating such a beautiful complex for cultural and entertainment programs around the heritage monument of Saramati Bharadari. Hello.
I understand that the corporation has planned 3 national festivals to be held every year at this venue as a tribute to Taramati, Premavati and Qutub Shahi rulers who patronize music and dance. These festivals commenced with the Premavati Dance Festival in October last year, followed by Taramati Music Festival in December 2004. The 3 days Golconda Cultural Festival is being held here from today in a beautiful atmosphere. No doubt, like all other national festivals, Golconda Cultural Festival will help in the preservation of the monument and promote the very rich cultural heritage of Hyderabad. The festival offers a wide variety of cultural programs by renowned artists of the country, and that will also help promote national integration. I am sure that over the years these festivals will become a regular feature of Hyderabad and popular throughout the country. I congratulate the Andhra Pradesh Tourism Corporation for taking this innovative project to reflect the cultural richness of Hyderabad. I wish this festival all success. Thank you. Jai Hind. पर आलीशान गोलकुंडा किले के खंडहर का वजूद आज भी बुलंद है। सैकड़ों अफसाने सुनाने को है ये बेकरार, क्योंकि यहाँ पत्थर बोलते हैं। Once again, हमने यहाँ जीवन आपको दिखाया। Ladies and gentlemen, Golconda, a fort which has stood the test of time, ravaged but not vanquished, proud, majestic, grand. That's Golconda, ladies and gentlemen. आज भी समय को चुनौती देता गोलकुंडा का किला कई कहानियां सुनाता, कई अफसाने लुटाता, पर खुद इसकी कहानी क्या है? आइए सुनते हैं गोलकुंडा की कहानी बिल्किस अलादीन की ज़बानी। We present an enchanting play that combines theatre, music, dance and drama. It takes you centuries back and unveils the story of Golconda. This is written by Shri Bilkis Aladeen and has been directed by Shri Aslam Manshuri. The name of the play is Quli Qutub Shah. Do enjoy this play. It captures the spirit, the very spirit and the essence of Golconda Fort. కులీ కుతుబ్ షా నుంచి జారువారినటువంటి సంగీత రసమయ్య सदियों से सी सुरमई आसमान के बीच सरसब्ज शादाब जमीन पर स्याह चट्टानों के बीच खड़ा सैयाहों की मुताजिब नजरों का मरकज बना हुआ हूं। मैंने कई बदलते मौसम देखे, जिंदगी को रहमत की पुआर में जहां मुस्कुराते देखा, वहीं खजा के झोंकों में मुरझाते भी देखा है। मैं गोलकुंडा, नीलम और गौहर का शहर, जहां हीरों की मंडियां लगती थी, जहां कोहिनूर की चमक ने दुनिया की नजरों को खीरा किया था, वही बाग़े आलम जहां हर रुत एक नई बहार लेकर आती और अपनी महक से सारी कायनात को अपने रंग में रंग लेती थी। यही वो जगह है जहां बहमनी सूबेदार सुल्तान कुली ने अपना परचम लहराकर अपनी खुदमुख्तारी का ऐलान किया था और कुतुबशाही सल्तनत की बुनियाद डाली थी। गोलकुंडा वो मुकाम जहां इब्राहिम कुली कुतुब शाह जैसे बादशाह ने बड़े बड़े उलमा, मशाइखीन और फनकारों की सरपरस्ती की, उनके साथ महफिलें सजाई। मैं गोलकुंडा हूं, वो चमन जहां मोहम्मद कुली कुतुब शाह और भागमती के प्यार ने अंगड़ाई। मोहम्मद कुली कुतुब शाह उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर।
जिसका हर शेर प्यार में डूबा अपनी मिसाल आप है, कल भी था और आज भी है। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह का प्यार भागवती, वो जिसके सामने सलोने हुस्न को कुदरत ने कौसो कदर के सारे रंगों को इकट्ठा करके निखारा। मैं गोलकुंडा हूं, आज मैं आपको अपने साथ माजी के झरोखे में लिए चलता हूं। होली हो कि बसंत, कोई भी त्योहार गोलकुंडे के किले में जैसे बहारों के काफले का सरदार बनकर आया करता था। चारों तरफ फूलों का निखार, कलियों का अंबार, रंगों की फुहार। कहीं गीत संगीत की महफिलें सजी हैं तो कहीं घुंघरू की थाप से सजा गूंज रही है। कहीं जामा मीना का गाँव चल रहा है तो कहीं गंजवा और ताश की बाजियां लगी है। बहती हवाएं, फूलों की महक और रंगों की बौछार, बसंत का त्योहार। शहजादे के कानों से जब ये सब आवाजें टकराई तो शहजादा सुल्तान मोहम्मद कुली भेद बदल कर उस महफिल में आ पहुंचा जहां भागवती अपनी सहेलियों के साथ बसंत के नाच में मशगूल थी।
नहीं आता। अरे तुम्हें नाचना नहीं आता? तो फिर यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें देखने। मुझे देखने? आखिर तुम हो कौन? अजनबी हूँ, तुम्हारे शहर में नया आया। सुनो अजनबी, नए आए हो तो जान लो, सुल्तान इस तरह लड़कियों के साथ छेड़छाड़ पसंद नहीं करते। हाँ, और फिर सख्त सजा मिलती है। अच्छा, सुल्तान के बारे में इतना कुछ जानती हो? क्यों नहीं, हमारे सुल्तान जो ठहरे। अच्छा अब भाग जाओ, वरना रंग लगा दूंगी। लगा दो। क्या? लो, लगा दिया। अब जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक। अरे जानती है वो कौन थे? कौन थे? वो थे शहजादा मोहम्मद कुली। लग गया ना फिर दोनों की एक हिरन। कल रंगमहल में शहजादे का जश्न विलादत मनाया जा रहा है, तुम भी चलोगी ना हमारे साथ? अरे ये कैसे नहीं चलेंगी, ये तो जरूर चलेंगी। क्यों भागवती? ये क्योड़े का शरबत लीजिए सरकार, जो आपको ठंडक और सुकून पहुंचाएगा। इस आतिशी मई का एक घूंट तो लीजिए हुजूर, जो दिलो दिमाग को गरमा दे और सारे गम भुला दे। पता था तुम जरूर आओगी। कैसे हुजूर? हमारे दिल की धड़कनें कहती थी, हमारी हर धड़कन पर तुमने अपने प्यार की मोहर जो लगाती है। सरकार खत्म हो, आप ठहरे शहजादे, और मैं अदना कनीज रकासा। भला भला हमारा मेल कैसा सरकार? नहीं भागवती, तुम हमारी हो और यही सारी हदबंदियां मिट जाती हैं। यहाँ अब तुम हो, हम हैं, ना कोई शहजादा है ना कोई रक्कासा। सच, यहाँ तो कोई भी नहीं। जहाँ हम दोनों हो वहां कोई भी नहीं आ सकता। ये कनीज शहजादे को सालगिरह की मुबारकबाद देना भूल गई। सालगिरह? कैसी सालगिरह? हमारी जिंदगी तो आज ही शुरू हुई है भागवती। लेकिन ये शायद मेरी जिंदगी की आखिरी शाम है शहजादे। ऐसा न कहो, अब हर शाम हमारी शाम होगी। ये लो हमारी मोहब्बत का नजराना। अब फिर कब शहजादे के दर्शन होंगे? अब हम खुद आएंगे तुमसे मिलने। मैं तो नदी के उस पार रहती हूँ शहजादे। हम नदी को पार करके आएंगे। नदी में तुगयानी है। हम उस तुगयानी को रौंद डालेंगे। मैं निसार इन कदमों के जो मेरी आरतियों के मालिक को मुझ तक ले आएंगे। कहीं इंतजार को मेरी किस्मत न बना देना शहजादी। नहीं भागवती, नहीं।
हम जरूर आएंगे। शहजादी, भागमती, कुली कुतुब शाह और भागमती का इश्क परवान चढ़ता गया। महल सरा के दरो दीवार से छन कर ये मोहब्बत की रोशनी गोलकुंडे में फैलती गई। बादशाह वक्त सुल्तान इब्राहिम कुली कुतुब शाह की दूरंदेश नजरों ने आने वाले कल की खातिर इसे पसंद नहीं किया। अपने चहेते बेटे की एक रक्कासा से मोहब्बत में उन्हें गोलकुंडे का तख्त व ताज डोलता नजर आया। इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने शहजादे को महल सरा में नजर बंद करवा दिया। यह हुक्म सादर कर दिया गया कि शहजादा किले से बाहर नहीं जा सकता। शहजादे को रोकने की तमाम तरकीबें बेकार गईं, क्योंकि इश्क और मुश्क किसी के रोके से नहीं रुकता। मूसा नदी में तो क्या नहीं थी। तूफानी बारिश में शहजादा उस गजबनाक नदी को पार करके चिश्ती में पहुंच गया, अपनी महबूबा भागमती के पास। इस इत्तला पर इब्राहिम कुली कुतुब शाह के गुस्से से गोलकुंडे के दरो दीवार कांपने लगी। रायगांव को हाजिर किया जाए। बंदा हाजिर खिदमत है हुजूर। क्या ये सच है कि हमारे हुक्म के बावजूद शहजादे कुली को महल सरा से बाहर जाने दिया गया? हुजूर आला, शहजादे ने जो कुछ किया वो काबिल माफी है सरकार। एक मामूली रकासा के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना, तूफानी मूसा नदी में बिना सोचे समझे घोड़े समेत नदी को पार करना और फिर हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी करना, क्या ये खताएं काबिल माफी? हुजूर, मोहब्बत ने शहजादे को इन सब खताओं पर मजबूर किया है। मेरी दरख्वास्त है कि जवानी के जोश में की गई ये गलतियां माफ की जाए। आखिर वो आपका चहेता बेटा और गोलकुंडे का वली है ना हुजूर। तुम सच कहते हो रायगांव, हम शहजादे को बहुत चाहते हैं, उसकी हर खता को माफ कर सकते हैं, मगर हम ये हरगिज़ नहीं चाहते कि गोलकुंडे का होने वाला बादशाह इस तरह अपनी जान को खतरे में डाले। हम हुक्म देते हैं कि मूसा नदी पर फौरन एक पुल की तामीर शुरू की जाए और ये काम जल्द से जल्द आए तकमील को पहुंचे, ताकि हमारे शहजादे की जिंदगी इस तरह के खतरात से महफूज रहे। हुक्म की तामीर हो सरकार। सरकार, आप इस वक्त इतनी तूफानी रात में? हमारे दिल में जो तूफान उठ रहा है वो इस तूफान से कुछ कम नहीं। हम तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकते भागवती। आपका घोड़ा और आपकी खिदमत गुजार। हमें किसी का कुछ पता नहीं। हम तो बस तैरते हैं, सरकश मौजों से लड़ते हुए तुम तक पहुंच गए। आपने इस खौफनाक तूफान में दरिया पार किया, आखिर क्यों? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं तो दुआ कर रही थी कि आप ना आए। तुम दुआ कर रही थी कि हम ना आए? हाँ। यानी हम अपने वादे से फिर जाए? याद रखो, तूफान की खौफनाक मौजें हो या आतिश की मंजर या फिर मौत ही सामने क्यों ना खड़ी, हम सबको पार करके तुम तक पहुंच सकते हैं भागवती।
हुजूर, आप भीग चुके हैं, आपको सर्दी लग जाएगी। मैं अभी आई। नहीं भगवती, तुम कहीं मत जाओ, यही बैठो हमारे सामने, हमारे पास। नहीं सरकार, मुझे डर लग रहा है। हमारे सरकार, अब देखो तुम डरती किस लिए हो? क्यों? किस वजह से खौफ के स्याह बादलों से तुम्हारी आंखें उठने होती जाती है? मैं डर रही हूँ सुल्तान के कहर से। आप इस तूफानी रात में जिस तरह मुझसे मिलने आए हैं, वो किस कदर परेशान और गजबनाक होंगे आप पर। हमारे होते तुम्हें खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं। भागवती, उल्फत दहशत के सायों से पाक होती है। सरकार, भागवती, सरकार। भागवती। वक्त गुजरता गया, गोलकुंडे के शब रोज भी बदलते गए। इब्राहिम कुतुब शाह की पूरी कोशिशों के बावजूद कुली कुतुब शाह और भागवती को एक दूसरे से मिलने से कोई रोक न पाया। वो बराबर एक दूसरे से मिलते रहे। आखिर तंग आकर सुल्तान इब्राहिम कुतुब शाह ने दुनिया की अजीमुश्शान सल्तनतों की हसीन तरीन शहजादियों को गोलकुंडा में ममन किया, लेकिन उनका हुस्न भी सुल्तान कुली कुतुब शाह को अपनी तरफ राग़िब न कर सका और न ही भागमती उसके दिल से निकल सकी। हमारे बेकरार दिल का इलाज संगीत सियासत के बस में नहीं। इस दिल का दर्द ही इसकी दवा है। अब हम किससे कहें कि हमें हमारे दिल आराम से मिला दो, हमको सुकून मिल जाएगा, हमको सुकून मिल जाएगा। आसमान का रोशन चांद हूँ, मेरी चांदनी से दिलों में उजाला है। मेरे केसुओं में तारे जगमगाते हैं। मेरी मुस्कुराहट चट्टानों के दिलों में शिगाव डालती है। मैं जिस पर नजर डालूं वो दीवाना हो जाए, मेरा दीवाना। ईरान के गुलशन का सबसे शादाब गुलाब, मेरी रंगों से दुनिया रंगी, मेरी महक से दुनिया मोहता है। मैं छूं तो बाहर आ जाए, मैं लहकूं तो शबाब मुझे देखे। मैं होशरुबा, मैं दिलरुबा, मेरी आंखों में शराब की मस्ती, मेरे होठों में शहर में डूबी पंखड़ियों का रस। कश्मीर की गली, मेरे रंग में शफक की सुर्खी, मेरे बदन में ज़ाफ़रान की महक, मेरी आंखों में नरगिस का जादू, मेरी चाल में शाफ़िर की लचक, मैं मचलते रंगों की धनक, एक मुसव्विर के हसीन ख्वाबों की ताबीर। बस बस, अब बस करो, अब बर्दाश्त नहीं होगा। ये तमाशा बंद किया जाए, अब कोई हमारे सामने ना आए। हम इन जलवों पर रीझ नहीं सकते, इन हुस्न की परियों से बहल नहीं सकते। जिस हुस्न के सीने में दिल ना हो, वो
तो की जा सकती है, उससे मोहब्बत नहीं की जा सकती। और जिन आंखों में कोई महबूब बसा हो, वो आंखें किसी और को हंसी नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। हम हुस्न का बाजार सजाना नहीं चाहते। सुन लो, सुन लो, हमने मोहब्बत का सौदा किया है, और यही सौदा हमारी जिंदगी का सरमाया है। हमसे ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। ये जुदाई हमें दीवाना बना देगी। महल की दीवारों, हमारे रास्ते से हट जाओ। हमें वहां जाने दो जहां हमारी मोहब्बत हमारी राह देखती खड़ी है। जाने दो।
बड़ी बेदर्दी के साथ जमाने के औरात उलटता रहा। गोलकुंडी के हालात भी बदलते गए। सुनहरे रुपैले पलों में पलने वाली जिंदगियां हवा के झोंकों के साथ खत्म होने लगी। मगर भागवती और कुली कुतुब शाह की मोहब्बत पर वक्त, हालात या मौसमों के सर्द या गर्म में कोई असर नहीं। सन 1580 ईस्वी में इब्राहिम कुतुब शाह का इंतकाल हो गया और उसी साल सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह गोलकुंडे के तख्त पर जलवाफूर हुआ। तख्त नशीनी के बाद उसने भागवती से शादी की और स्थल के मुकाम पर जहां वो दोनों मिला करते थे 4 मीनार की बुनियाद रखी और उसके अतराफ में एक नया शहर आबाद किया, भागनगर। और जब भागवती को हैदर महल का खिताब दिया गया तब भागनगर का नाम रखा गया हैदराबाद। मिर्जा अली, हुजूर आली, हमने जिन इमारत की तामीर का हुक्म दिया था वो कितना मुकम्मल हुआ? सरकार, नदी महल और चंदा महल तैयार हो चुके हैं। 4 मीनार का काम जारी है। इंशाअल्लाह 14 रमजान मुबारक तक तैयार हो जाएगा। अगर सरकार इजाजत दे तो मैं उसका नमूना हुजूर वाला की खिदमत में पेश करना चाहता हूं। इजाजत है। बहुत खूब, वाकई काबिल दीद है ये मिर्जा अली। हम चाहते हैं कि इसे अपनी मलिका के सालियाना पर तोहफे पेश करें। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा हुजूर। सरकार अगर इजाजत दे तो इस खुशी के मौके पर रफ्स मौसीकी का एहतमाम किया जाए। हाँ, क्यों नहीं, इजाजत है। शादियाँ हैं शायद हमारे देश में साथ थे तो उनसे पूछा नहीं, मुझे फ्लाइट है बल्कि बोले उनके फ़ोन से कर मुश्किल है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, हम खुश हुए। आज हम बहुत खुश हैं मिर्जा अमीन। अल्लाह ताला ने हमें वो सब कुछ अता किया जो हम चाहते थे। शोहरत, इज्जत, नुसरत और मोहब्बत, और ये सब हम जानते हैं हमें सच्चे प्यार की बदौलत मिला। सरकार, भागवती, चंद दिनों की बात है, फिर 4 मीनार बनकर तैयार हो जाएगा। यही वो जगह है जहां हम तुम मिला करते थे। हमारा नया शहर भी बसना शुरू हो गया है और परवरदिगार से दुआ है उसे भी हमारे प्यार की तरह रोशन और आबाद कर दे। आमीन। मुनाजात मेरा तो सुन या समी, मुनाजात मेरा तो सुन या समी, मुझे खुश तू रख
और जमीन करवटें लेती रही। एक रुत आती और एक रुत जाती रही और इसी तरह सदियों बीत गई और फिर आज के इस मौजूदा दौर के लिए मेरी ये हकीकत एक कहानी बन गई और जीते जागते इंसान तस्वीरों में और पत्थर की मूर्तियों में ढलते चले गए। मगर यादें बहती हवाओं के साथ गर्दिश करती रहती हैं। मैं गोलकुंडा अपनी पूरी यादों, माजी की शानदार रिवायतों, सच्ची मोहब्बत की दास्तानों और मेरे दरो दीवार से लिपटी सुनहरी हकीकतों की खुशबू से महकता आज भी अपनी जगह खड़ा हूं। मेरे खंडर मेरे शानदार माजी के गवाह हैं। हैदराबाद मेरे उस माजी से जुड़ा वो सुनहरा वर्ग है जिसकी हर तहरीर एक यादगार है। मैं कल भी शानदार था और आज भी हूं, कल भी रहूंगा, मगर शर्त ये कि मुझे महफूज रखा जाए अपने दिलों में, अपने दिमागों में मेरे माजी को दोहराया जाए, क्योंकि इसमें आपका आज भी महफूज रहेगा, आने वाला कल भी। श्री असलम परशुरी रचयिता बिल्किस गारू श्री జయపాల్ గారు సన్మానిస్తారు. మీ అందరి కరతాళతులతో అలాగే నాటక రచయిత్రి బిల్కిస్ గారు కూడా బ్రాడ్కాస్టింగ్ అండ్ కల్చర్ మినిస్టర్ గౌరవనీయులు శ్రీ జయపాల్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా నాటక రచయిత్రి విశేషం ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన శ్రీ సుశీల్ కుమార్ షిండే గారు వారిని సత్కరిస్తూ ఉన్నారు. Please be there, sir. Please. You can come here so Please. that everyone will. Thanks very much, sir. గోల్కొండ సాంస్కృతిక మహోత్సవంలో అలనాటి తీపి గుర్తుల్ని చక్కటి జ్ఞాపకాలుగా విశేషమైనటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా మనకు అందించిన నాటక బృందం తరఫున అస్లాం పర్షురీ గారు, బిల్కిస్ గారు ముఖ్య అతిథి గారి నుంచి, ప్రత్యేక అతిథి నుంచి సత్కారాన్ని స్వీకరించారు. థ్యాంక్ యూ సార్. हकीकत कैसे बन जाती है अफसाना? यकीनन इस मुकम्मल ईरानी प्रिंसेस थी मोनिशा कुठारी, कश्मीरी प्रिंसेस बनी थी नमीरा बेग, भागवती की सहेलियां थी श्रेया, श्वेतांबरी नाथ, समीरा राज, त्रिशा, रम्या और प्राणिका। चौकीदार थे ए वेणुगोपाल और श्रीधर। प्रोडक्शन में असिस्ट किया था नबीला असलम ने और प्रोडक्शन कंट्रोलर थे जनाब खालिद इकबाल, जिन्होंने लाइट और साउंड भी कंट्रोल किया। और अब मैं बताना चाहूंगा भागवती को। भागवती बनी थी शर्मिला तनेजा और मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे अमान परशोर।
आप सबका बेहद शुक्रिया। థ్యాంక్ యూ సంతోషరి గారు. గోల్కొండ సాంస్కృతిక ఉత్సవం అపూర్వంగా సాగుతుంది. మీ అందరి ఇక్కడ